Assalamu alaikum once again, everyone. I see a lot of ambassadors here as well. Thank you so much for joining. We are going to begin tonight's session in the usual manner. Okay? I'm going to introduce empowerment through learning. And by I mean Mohammad Mutahir, the program coordinator at ETL Online. Recently, I'm so happy because I recently graduated sixth semester in my university studying bachelor's in software engineering. That's why I'm so pumped up. And with me, we have Ms. Hamna Jabeen, the second program coordinator at ETL Online, who's also showing the screen in front of you. I hope the screen is visible for everyone. Just do a thumbs up if you can see the screen as well, or just say it in the chat. Zabardast. I see a few hands raised and a few thumbs up as well. Thank you so much. Acha ji. Empowerment through learning. ETL Online की abbreviation. Basically, our mission is to bridge the gap between academia and industry by preparing youth with hands-on experience and, of course, soft skills as well. इसके लिए we have a few initiatives on our portal and on our community. Number one is, of course, the community portal, जहाँ पे we have 2,300 plus students waiting to collaborate with energy and enthusiasm. Then we have FYP support, जहाँ पे Madam Asta is leading this. She offers final year project support. If you're in your final semesters, do check that out on our website as well. Next up comes iRise or iRise with real industry skill experience, which is basically ETL का paid, of course, project platform जहाँ पे we offer internships. Next comes mentorship program. Of course, जो हमारे ambassadors हैं, we promised them कि हम उनको one-on-one mentorship offer करेंगे. And surprisingly, Sir Asim Ajmal tonight here is also one of our mentors at ETL, who is also offering mentorship sessions with our ambassadors. Here, next, career help. Of course, we have this huge database of resources, career webinars, ask the expert sessions, और बहुत सारी recordings on our YouTube. I'll share the links in a bit that offer career help if you're stuck or are confused what to study. Next is open source project contribution or open source program coordination or contribution. Sorry for the slight slip of tongue over there. This is basically our running program. This will launch soon in July as well, जहाँ पे we are going to work on many open source projects. जिस तरह Linux है, Python है, it's an open source programming language. A lot of open source tools out there जो हम जाने या ना अनजाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, but we don't know about. Huge example is Linux, of course, जितने भी distributions हैं and Python. So without further ado, I'm going to share the links of our socials and our website in our Zoom chat. And of course, over to you, Ms. Hamna. Assalamu alaikum, everyone. So now we'll move on to tonight's session, tonight's webinar, the main topic, common tech interview questions and their ideal responses. हमारे साथ as our speaker is Sir Asim Ajmal. Sir Asim के पास 25 years का extensive experience है product engineering, data analytics, technology consulting और leadership में. ये एक्सपीरियंस मुख्तलिफ रीजन्स में लार्ज स्केल डाटा एनालिटिक्स और क्लाउड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर फोकस करता है. सर आसिम टेक्रो डिजिटल के फाउंडर और COO हैं, जो एक प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी है. उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज हासिल की और डिलीवरी एक्सेलेंस में भी सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए. सर आसिम एक कंटिन्यूअस लर्नर हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में गहरी दिलचस्पी रखते हैं. वो एक्टिवली वॉलंटियर करते हैं एज अ मेंबर ऑफ इस्लामिक इंटरनेशनल कंप्यूटिंग एलुमनाई ग्रुप, जहां वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स गाइड करते हैं और नए ग्रेजुएट्स को मेंटर करते हैं. इसके अलावा सर आसिम अपनी एक्सपर्टीज टाई इस्लामाबाद, ETL ऑनलाइन और CXO ग्लोबल जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क्स में भी शेयर करते हैं, जहां वो प्रोफेशनल्स को वैल्यूएबल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं. वाओ, व्हाट अ इंट्रोडक्शन. सर, ओवर टू यू. Take the session's lead and tell us how we can respond to common tech interviews ideally. Thank you so much, Hamna and Mutahir, for the wonderful introduction. And Assalamu alaikum, everyone. First of all, welcome you all to join this session. और आज की जो talk है, it is about navigating your first tech interview.
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से इंटरव्यूज दिए हो, कुछ लोग हैं जो कि भी इंटरव्यूज के लिए अपीयर होंगे, और कुछ जो है शायद बार बार अपीयर हो रहे होंगे, राइट? तो लेकिन मेरी जो टॉक है आज की, इसका मकसद बेसिकली ऐसे ही मेंटोरशिप, ऐसी कुछ टिप्स देना है जो कि बिल्कुल जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो किस तरह से अपने फर्स्ट पहले इंटरव्यू की तैयारी करें, क्या चीज़ें जहन में रखें बिफोर अपेयरिंग टू द इंटरव्यू, और देन फिर वी विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। ठीक है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो डेफिनेटली प्लस माइनस हो सकते हैं, बट सम रिलेटेड क्वेश्चंस एंड द सिचुएशन जो कि इंटरव्यू के दरमियान में आपको फेस होती है। Let me share my screen, and then we begin with some slides. And yes, it will be an interactive किस्म का session होगा. You can ask questions between the slides, or otherwise you can post your questions in the chat, so that Hamna and Mutahir will share with me, and I will try to answer as many as questions that I can. Right? Uh, and let me share my screen quickly. I hope all of you can see my screen. Yes, sir. Sir. Okay, great. This is topic of the talk is navigating your first tech interview. Some common questions and their winning answers. And the platform is ETL, as Mutahir and Hamna already mentioned. First of all, who am I? आप introduction में कुछ करा दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने बारे में और बताना चाहूँगा, very briefly, and then we will proceed to the actual slides. This is it. All right, so I am from the alumni of International Islamic University. I did my BSc honors and then masters from the same university, and graduated in year 2000. And I am also PMI, holding a PMP certification from PMI, Project Management Institute. Or this certification helped me a lot for in the management consulting, and as well as on the leadership roles. I started my career from VisualSoft, and back in 2000, or joined out there as a junior Java engineer, and worked in some e-commerce websites. And then I moved to LMKR. There I worked for more than 15 years. And so LMKR boosted my career from the software engineer to the product management. Then I joined Teradata in 2015. Teradata में मेरा role जो था, basically it was delivery excellence consultant as well as the data analytics consultant. And वहाँ पे काफी I got an opportunity, I got multiple opportunity in fact, to work with some Fortune 500 clients around the globe. Then for a short period of time, I worked for IBM as well. And IBM, I was the program manager for the Jazz Cache that was being developed by IBM at that time. और उसकी जितनी development infrastructure वो चीजें I was managing. Then during the COVID days, I founded Techro, which is which is a software development services company. And our focus is on product engineering as well as the AI and data engineering use cases. So I'm one of the co-founder as well as the chief operation officer. And then I volunteer with ETL since I believe since its inception, या फिर एक आध महीने बाद, तो उसके बाद से काफी टाइम हो गया मुझे ETL में मल्टीपल एंगेजमेंट्स के अंदर मल्टीपल चीजों में वॉलंटियर करते हुए। बेसिकली मकसद यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी को मेंटोर करूं, और आई एम एज वेल अ मेंटी, कि कोई मुझे भी मेंटोर करे। एंड आई एम कंटिन्यूअस लर्नर. So every day and on every talk and every time when I get hooked with ETL, so मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. So that's a win-win situation for me as well as ETL. And then I am part of TIE Islamabad. TIE is a forum for entrepreneur. And so वहाँ पे मेरा जो and I'm one of the charter member of TIE Islamabad.
और बेसिकली मकसद जो है वो अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है उससे उससे किसी और को सिखाना और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना. So again, it's related to learning. All right, Ji, let's move to the actual topic. Just imagine that you are appearing for the first tech interview. ठीक है. अच्छा, जो पहला टेक इंटरव्यू होता है वह मैं आपको बता दूं कि इट इज उसके लिए बहुत प्रिपरेशन की जरूरत होती है, बिकॉज इंटरव्यू में जो टेक कंसल्टेंट्स होते हैं या जो टेक इंजीनियर्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनका मेन एसेट जो होता है उनका उनकी उनकी लर्निंग, उनका नॉलेज, उनका स्किल और उनका एक्सपीरियंस. ठीक है. नॉलेज और स्किल्स जो है वो बहुत सारी आप यूनिवर्सिटी से भी कैरी करते हैं और आपको सेल्फ लर्निंग भी करनी पड़ती है, राइट. और एक्सपीरियंस जो है वो द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव वर्कड इन. So it is very important कि being a student, as many as project or do as many as project that you can. It's not necessary कि आप क्लास के असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स ही करें. आपको चाहिए कि आप कुछ अपने हॉबी प्रोजेक्ट्स करें, कुछ कुछ जगह पे वॉलंटियर करें, कुछ डिफरेंट हैकाथॉन्स में जाएं और डिफरेंट जो इंडस्ट्री इवेंट्स होते हैं उनको उनमें पार्टिसिपेट करें या उनको अटेंड करें. तो सो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एज मच एज यू कैन. अच्छा, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. ठीक है. इसका मतलब ये है कि आपका आपका जो जर्नी है टू योर फर्स्ट इंटरव्यू, इट इज़ नॉट अ वन टाइम. हो सकता है आपको पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए, क्लिक कर जाए. हो सकता है आपको मल्टीपल इंटरव्यूज देने चाहिए, लेकिन इंटरव्यू के अंदर भी आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. आपको आइडिया होता है कि इंटरव्यूज का प्रोसेस क्या होता है. ठीक है. अब इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं. ठीक है. और उस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आज की टॉक के अंदर, बिकॉज वो जो रिज्यूमे राइटिंग और हाउ टू प्रिपेयर वो आई थिंक इससे पहले भी कुछ ईटीएल के प्लेटफॉर्म में कुछ वेबिनार्स हो चुके हैं. तो डेफिनेटली मुताहिर एंड हमना कैन शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दोज वेबिनार्स जिन्होंने वो अटेंड नहीं किए. बट फिर भी हम उसका थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स टच करेंगे जो कि उसमें करने होते हैं. द क्राफ्टिंग अ क्लियर रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि आपके टू बी एम्प्लॉयर के पास आपसे रिलेटेड जाएगी. ठीक है. इट कैन बी योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इट कैन बी योर फिजिकल रिज्यूमे. ठीक है. तो हाईलाइट्स योर प्रोजेक्ट्स, योर इंटर्नशिप, रेलिवेंट कोर्स वर्क जो कि आपने इस दौरान अपने उसमें अपने अपने ड्यूरिंग द स्टडीज आपने किए हैं. ठीक है. एंड सिमिलरली योर पोर्टफोलियो इज अटेंडिंग दी, मेंशन कीजिए कि आपने कौन कौन सी कोई कोई वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं. द पावर ऑफ नेटवर्किंग. Do mention in your resume that number of the workshops that you have attended, number of webinars, number of seminars that you have attended. अच्छे सेमिनार जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड और प्लस आपसे आपके आपके स्किल से रिलेटेड है. अगर आपने इस तरह की कोई इवेंट्स अटेंड किए हैं तो उनको जरूर मेंशन कीजिए. ठीक है. और सिमिलरली लोगों से कनेक्ट किए हैं अपनी, स्पेशली जिस भी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं उसके एलुमनाई ग्रुप्स में हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाएं. राइट. प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, उसके अंदर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए और एक सीरियस प्रेजेंस होनी चाहिए. एंड बी वेरी केयरफुल कि आप लिंक्डइन के ऊपर क्या पोस्ट करते हैं, बिकॉज जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को एम्प्लॉयर देखता है तो वो बेसिकली खाली आपका आपका एक्सपीरियंस या आपका जो स्किल सेट है वही नहीं देख रहा होता. दे आल्सो सी व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑन द लिंक्डइन. ठीक है. तो बी वेरी केयरफुल. इसको लिंक्डइन को एक आम सोशल मीडिया की तरह यूज ना करें. उस पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल, रिलीजियस और दूसरी जो पोस्टें हैं वो ना करें, बिकॉज दैट लीव आर नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन द एम्प्लॉयर और एनी रिव्यूअर जो कि आपका लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है वो रिव्यू कर रहा है. ठीक है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लिंक्डइन. एंड देन इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आपकी जो टारगेटेड जॉब है उसकी एप्लीकेशन या उसकी जो मतलब आपका जो सीवी है उसको कस्टमाइज करें फॉर द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. एक जेनेरिक सीवी ना बनाएं. ठीक है. इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि वट एवर द जॉब डिस्क्रिप्शन इट इज़, अपना सीवी उसके मुताबिक थोड़ा सा मोल्ड करें. मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैजुरेट करें. If you think that you are not a good fit for this job, then don't apply. तो आपके चांसेस थोड़े से फिर कम हो जाते हैं कि अगर आपका सीवी उसके मुताबिक नहीं है या बाद में आपका सीवी अगर उसके मुताबिक हो प्लस आप जो इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर आप उसमें रह जाएं तो एक बुरा इंप्रेशन डाल देता है उस कंपनी के अंदर.
तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अपना सीवी किसी हद तक अपडेट जरूर करें, बट इट शुड बी अलाइन विद योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इट्स तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, की टेक अवे ये है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब और नॉट। एंड देन प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल स्क्रीनिंग। स्टेप्स क्या होते हैं, एक इसमें इसका ओवरऑल जर्नी क्या होता है? आपका सीवी जाता है, सीवी स्क्रीन होता है, सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, देन फिर somebody from the recruitment team to reach out to you। वो यूजुअली टेलीफोनिक कॉल होती है, उसके अंदर वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, आपका एक्सपीरियंस पूछेगा, तो उसके अंदर वो आपको स्क्रीन करके और आपकी एक्सपेक्टेशंस, एचआर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपकी आपके कुछ नोट्स जो है वो हायरिंग मैनेजर को देगा। देन हायरिंग मैनेजर के पास सारी स्क्रीनिंग लिस्ट आती है और हायरिंग मैनेजर उसमें से पिक करता है कि मैंने किसके साथ इंटरव्यू करना है या किसको हमने फर्दर एवेल्यूएट करना है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई स्क्रीनिंग कॉल आए तो यू शुड आंसर इट वेरी कॉन्फिडेंटली और यू शुड बी वेरी टू द पॉइंट। कोई चीज़ एग्जैजरेट ना करें। अगर इफ दे आर आस्किंग कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है, इफ यू नो द फ्रंट एंड डेवलपमेंट बताएं मुझे आती है। इफ यू डोंट नो द फ्रंट एंड डेवलपमेंट मेंशन दैट नो आई एम अ बैक एंड डेवलपर। ठीक है, आपको आपको एआई इंजीनियरिंग आती है तो जरूर मेंशन कीजिए। अगर नहीं आती तो थोड़ा सा उसको आप बता सकते हैं कि मेरा नॉलेज है, लेकिन आप एक विलिंगनेस जरूर बताएं कि आई एम एंथुसियास्टिक, आई कैन लर्न, आई कैन ऐड वैल्यू इन योर कंपनी इन दिस रोल। ठीक है, तो स्क्रीनिंग कॉल के अंदर इस चीज़ को जरूर मद्देनजर रखें कि आपने उसको किस तरह से आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एलिवेटर पिच, आपकी प्रोफेशनल स्टोरी क्या? आप जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटर जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, या जो हायरिंग मैनेजर है, उसके सामने आप इंटरव्यू देने के लिए मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन आफ्टर, एक तो ये है कि ऑफ कोर्स आपने इंटरव्यू के लिए टाइम पे आना है, आपने प्रोफेशनल अटायर के अंदर आना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वलीमे की तरह सूट पहन के आ जाए, बट अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वेयर सम रीजनेबल क्लोथेस। और अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, वट एवर द इट इज, अपना कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, किसी किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे शोर ना हो। कोशिश कीजिए लैपटॉप यूज करें, ना कि आप मोबाइल फोन से इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत स्टेबल रखें। अगर आपकी आवाज़ ठीक नहीं जा रही तो दैट्स मीन कि यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी, और आप जो है ना एक एम्बिग्युइटी क्रिएट कर रहे हैं इंटरव्यू के अंदर। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि ये सारी की सारी चीज़ें, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो वो उसमें इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें। और अगर आप फिजिकली ऑन साइट जाके इंटरव्यू दे रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट पहले वहां पे पहुंच जाएं। ठीक है, आपको अगर वेट भी करना पड़ता है, डू वेट, कोई ऐसी बात नहीं। तो लेकिन वहां पे जाकर टाइमली जाएं, लेट ना हो। और आपका जो अपेरेंस और अटायर है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक्स हो। अगर आपने अपने बियर्ड रखी हुई है, शुड बी ट्रिम। इफ यू आर क्लीन शेव्ड देन प्रॉपर शेव करके जाएं। बाल जो है वो सही तरह से क्यों, इट लुक्स गुड कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। Similarly, tell me about yourself. This is usually the first question जो कि कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। ठीक है, इसकी अप्रोच क्या है, इसको आपने कैसे आंसर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं कि आपका आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपके मेजर्स क्या थे। ठीक है, तो दैट विल बी योर प्रेजेंट। पास्ट में आप डेफिनेटली बताएं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, कौन से की प्रोजेक्ट्स किए, चाहे वो प्रोफेशनल थे, कोई इंटर्नशिप्स थी, कोई मेजर आपका एफआईपी था, या कोई एनी अदर मेजर एकेडमिक प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन एंड दैट इज रिलेटेड टू द जॉब दैट यू आर गोइंग टू इंटरव्यू। ठीक है, उनके बारे में जरूर बताएं। और देन फ्यूचर, एक्सप्रेस योर एंथुसियाज्म फॉर द रोल एंड द कंपनी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के बारे में जान के जाइए। जिस कंपनी में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उसकी वेबसाइट देखिए, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कीजिए, उसमें देखिए कि यहाँ पे इनके इनके किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी इस कंपनी में किस तरह कौन कौन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर ये कंपनी अगर फंडिंग पे चल रही है तो किसकी फंडिंग पे चल रही है। तो इस तरह का होमवर्क करके जाए। एंड देन फिर उसको जो इंटरव्यूअर है उसको ये चीज़ मेंशन करें अपने इंट्रोडक्शन के दौरान
कि आपका enthusiasm क्या है for this role of the company and how you self growing with them. ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट। एक छोटी सी एग्जांपल भी मैंने दी हुई है कि अगर मतलब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है तो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज कि प्लीज टेक 60 to 90 सेकेंड इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने आप को। जो अ, मेरे लिए अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ और अगर कोई बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होगा, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग कि जो 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 स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट है वो अगर अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन नहीं प्रॉपरली करा सकता तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट के ये इसको इसको मैं किस इस तरह के रोल किस 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 किस्म की इसका फ्यूचर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनेगा। ठीक है, तो start your question with some of the personal information about yourself, like I born and raised in a country or city जहाँ पे भी। ठीक है, then I'm a recent computer science graduate from the XYZ University, specializing in machine learning. During my internship at XYZ company, I had the opportunity to develop a recommendation engine that imposed user engagement by 15%। अब देखें यहाँ पे आप कोई चीज ऐसी नहीं बता रहे कि जो कि मैंने उसमें जावा में काम किया या मैंने पाइथन में काम किया मैंने ये स्क्रिप्ट लिख दिया। आप उसका रिजल्ट बता रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट था जो आपने कंट्रीब्यूशन की किसी भी प्रीवियस कंपनी में किसी इंटर्नशिप में या अपने FIP प्रोजेक्ट में उसका इम्पैक्ट क्या था। ठीक है, तो फोकस ऑन द इम्पैक्ट रादर देन दी कि उसमें आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की इस तरह का इंट्रोडक्शन, बिकॉज आपने देखें 60 to 90 सेकेंड्स के अंदर इस चीज को कंप्लीट करना है। डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी स्टैक। मेंशन कीजिए कि आपके आपका जो काम था वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है, राइट। एंड आई एम देन आप अपने बारे में बताएं कि आई एम पैशनेट अबाउट लेवरेजिंग डाटा टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, and which is why I was so excited to see this data scientist role at your company, and it aligns perfectly with my skills and career aspiration, right? तो इस तरह का अगर आप 60 to 90 सेकेंड्स के अंदर अपना कोई इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें उसका उसका जो एक इम्पैक्ट है वो डिफरेंट होगा, टू द पॉइंट, वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्प। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अभी बेशक आप अभी आपने आगे जाके जाना है लेकिन अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की प्रैक्टिस कीजिए जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए कि हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू एनीवन। मैं प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो इट 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 गिव्स अ एक तो इम्पैक्ट डालता है अगले सुनने वाले पे, उसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू, राइट। एनी क्वेश्चन सो फार? आई सॉ एक किसी Is ने अभी हैंड रेस there's किया हुआ था। Talha in the chat earning? Talha we have in the participants who raised his hand. अगर आप अपना mic unmute करके सर से question पूछें। जी तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अपनी रिज्यूमे होती है उसको इफेक्टिव किस तरह बनाए, लाइक उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस तरह ऐड करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐड करें तो वो 2 पेजेस की चली जाती है, वो फिर सीवी में कंसिडर हो जाती है। तो हम्म, रिज्यूमे में कौन सी लाइक इफेक्टिव चीज़ें ऐड करें और उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाएं कि रिक्रूटर उसको लाइक रिग्रेट ना कर सके। तो काइंडली जी, ये बता दें और राइट। मेन चीज़ें बता दें कि कौन कौन सी ऐड करनी चाहिए हमें। थैंक यू तलहा फॉर योर क्वेश्चन। मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका आंसर नहीं दूंगा बिकॉज इससे रिलेटेड आई थिंक एक पहले वेबिनार हो चुका है ETL के प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको जरूर इसका, बिकॉज सिंस आई टच दिस पॉइंट तो आई वुड लाइक टू आंसर टू सम एक्सटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तो आपका रिज्यूमे देखिए, 1 पेजर अप टू 2 पेजर होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपका एक्सपीरियंस ग्रेजुअली बढ़ता है तो आपके पास रिज्यूमे पे डालने के लिए कंटेंट भी ज्यादा होता है। एक तो रिज्यूमे के अंदर ऑफ कोर्स आपका आपका नाम, आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक जरूर उस पर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फोकस ऑन योर FYP। जो आपने प्रोजेक्ट मेंशन की करना है वो टॉप पे जो है, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट आपने किया है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हैं, अभी ग्रेजुएट होकर जा रहे हैं, तो आप अपना FYP मेंशन कीजिए, ठीक है। और FYP में कोशिश करें कि आप बताएं कि अगेन के ये FYP का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था और आपका और आपने इसको
उसके जब एंड रिजल्ट इसका क्या था, ठीक है, मतलब एक तो स्टेटमेंट एंड देन वो आपने इसको किसी कोई एनालिटिकल कोई मॉडल बनाया आपने इसके लिए, आपने इसके लिए कोई वेबसाइट बनाई, आपने इसके लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, वट एवर यू हैव डन टू 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 एड्रेस दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो चीज़ मेंशन कीजिए। और अगर फॉर एग्जांपल किसी के लिए किया आपने एक प्रोजेक्ट, तो उनका भी नाम मेंशन कीजिए कि मैंने इस कंपनी के लिए किया या इस डोमेन के लिए किया, और देन उसकी उसके टेक्नोलॉजी स्टैक्स। इसके अलावा जो आपने टेक्नोलॉजीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जिनका आपको अच्छा नॉलेज है, ठीक है, वो जरूर मेंशन कीजिए और एग्जैजुरेट ना करें अपने सीवी को। तो फॉर एग्जांपल इफ यू नो जावा वेरी वेल, प्लीज मेंशन जावा। अगर आपने नोड जेएस को सिंपल कोई टच किया था, कोर्स पढ़ा था, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डोंट मेंशन कि मैंने ये कोर्स स्टडी किया। अगर आपने स्टडी किया है तो देखें, जो आपका सीवी देख रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने जो कुछ इसके ऊपर सीवी पे डाला है, यू नो इट वेरी वेल, राइट। तो सिर्फ वो चीज़ मेंशन करें जो कि ट्रूथफुल हो और जो आपको आती हो, वो वाली टेक्नोलॉजीज बताएं। और देन फिर आपने कुछ एक ब्रीफ सी समरी अपने बारे में लिखें, और अपने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आप बता सकते हैं कि यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। कोई आपने यूनिवर्सिटी में अगर कोई इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए हैं या किसी हैकाथॉन का पार्ट रहे हैं, वो चीज़ बताएं। अपने कोई डिस्टिंक्शंस बताएं, कोई सर्टिफिकेशन आपने की है तो वो चीज़ बताएं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जरूर मेंशन कीजिए। और प्लस आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सीवी उस जॉब के जेडी के साथ, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अलाइन करता हो, राइट। ओके सर, ठीक है, तो थैंक यू। इससे राइट। और थैंक यू सो मच। चलिए थैंक जी, यू। आगे चलते हैं हाँ जी, जी। चैट में एक और क्वेश्चन है। बिफोर दैट तलहा, मैंने आपके लिए लिंक छोड़ दिया हमारे प्रीवियस वेबिनार का, जिसके अंदर आर मेंटर मैम फाइजा, उन्होंने बताया, शी इज़ अ हायरिंग मैनेजर, एंड उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है दैट हाउ यू कैन बिल्ड योर परफेक्ट रेज्यूमे, क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, एटीएस को किस तरह ओवरकम करना है एंड हम्म। एवरीथिंग। फॉर यू सर, ओके हमारी मैम। चैट में देयर इज दिस क्वेश्चन बाय मिस अस्का। वो पूछ रही है, एक पॉइंट पर आपने मेंशन किया था कि मेंशन द सेमिनार्स एंड वेबिनार्स दैट यू टेकन सो फार। तो वो हम्म। पूछ रही है कि सिर्फ सेमिनार्स मेंशन करने हैं कि हम वेबिनार्स को भी मेंशन करते हैं, बिकॉज वी टेक वेबिनार्स रेगुलरली एट ईटीएल, सो हम इनको मेंशन कर जी सकते हैं। जी, देखिए, जो रेलिवेंट वेबिनार है फॉर दैट रिलेटेड जॉब, उनको तो जरूर मेंशन करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा साइंस की किसी जॉब के लिए अपेयर हो रहे हैं और आपने डाटा साइंस से रिलेटेड कोई वेबिनार, कोई कोई इवेंट अटेंड किया है, तो उसको जरूर मेंशन करें, ठीक है। अगर अगर आपने फॉर एग्जांपल आप इसके लिए बता रहे हैं कि हाउ टू, ये वाला वेबिनार अगर आप पेश करेंगे कि हाउ टू गो फॉर योर फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो आई थिंक इसको किसी एम्प्लॉयर के आगे मेंशन करना, दैट विल नॉट लीव एनी इम्पैक्ट ऑन देम। आई होप आई हैव जी आंसर, ठीक है। जी सर, सर, थैंक यू सर। आप कंटिन्यू करें, आई डोंट थिंक वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस। सर वन So there's लास्ट one क्वेश्चन। question in the chat, if I जी may. जी, यस प्लीज। Yes, sir. Should we mention all the skills, जो भी हमारा skill set है in the CV, or just the required skills by the employer? I think this question also relates to the difference between CV or resume. But considering that we are just students and starting out our careers, so what do you recommend? देखिए, ऑफ कोर्स जो आपके, मेरे ख्याल में जो आपका जो स्टूडेंट्स होते हैं और उनके पास जो मेजर स्किल होता है, वो उनका एफआईपी से रिलेटेड होता है, ठीक है। मेजोरिटी की बात करूँ, कुछ एक्सेप्शंस होंगी जिनको और भी चीजें आती हैं, लेकिन जो आपको एक सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलता है, प्रैक्टिकल एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो मिलता है अदर देन दी असाइनमेंट्स, वो आपको आपके एफआईपी में मिलता है। बिकॉज एफआईपी इज द लॉन्गेस्ट थिंग। तो आप 7th सेमेस्टर में स्टार्ट करते हैं, 8th सेमेस्टर तक लेके जाते हैं। बाकी जो असाइनमेंट्स और कोर्स असाइनमेंट्स होती हैं, उनका उनका जो स्कोप होता है वो उस रेलिवेंट सेमेस्टर तक होता है, ठीक है। तो एक तो ये है कि अपने एफआईपी के जो आपके आपके आपकी लर्निंग है, आपकी जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, उसको तो जरूर हाईलाइट करें। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ अच्छी आती है तो जरूर बताएं, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी वो जो टेक्नोलॉजी स्टैक है वो रेलिवेंट टू द जॉब होना चाहिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। All right, sir. Thank you. ठीक, चलिए जी, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन हम बीच में 2-3 स्लाइड्स बाद फिर हम दोबारा एक क्वेश्चंस का सेशन करते हैं, राइट। ऑल राइट, द बेड रॉक ऑफ योर नॉलेज। तो दिस इज अबाउट दी, मतलब ये स्लाइड एड्रेस कर रही है कि जो फाउंडेशनल कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स हैं,
ठीक है। उनके उनके जिस तरह से मतलब कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है, जिसके अंदर आप इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और थोड़ी सी इवन डिटेल में जाके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऊप इज द बेसिक थिंग। तो इसको इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अब ये वो चीज़ है जो कि शायद आप उसके ऊपर नहीं लिख रहे अपने रिज्यूमे के ऊपर कि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। आपने शायद कोई टूल लिख दिया होगा कि मैंने जावा में काम किया है या मुझे सी प्लस प्लस आती है। बट स्टिल ऊप के क्वेश्चंस आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि किसी भी इंटरव्यू के अंदर टेक्निकल साइड के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड देन जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, डाटा, व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। जिसको डाटा स्ट्रक्चर्स अच्छी आती है ना, वो समझने कि वो ही और शी इज अ एक्सीलेंट इंजीनियर। वो किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग टूल में इजीली काम कर सकते हैं। तो अरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ, हैश मैप्स, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। ठीक है, इसकी इसकी डेफिनेटली आप ये वो कोर्सेज हैं जो कि हर स्टूडेंट, हर कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पढ़ता है। और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं, बिकॉज ये चीज़ें आपकी रोज़मर्रा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होती हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, उसमें आपको एरे मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, आपको सॉर्टिंग करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, आपको डाटा मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, आपको डाटा किसी ना किसी इन मेमोरी सेव करना पड़ता है। तो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट कि आपको जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपने इसकी असाइनमेंट्स की हैं जो करें, अदरवाइज खुद से प्रोजेक्ट्स बना के खुद से प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स करके आप इनको इनको प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं वो करें। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज आपको जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, जो कि आपको एक वाइट बोर्ड टास्क दिया जाता है, जो कि मतलब फॉर एग्जाम्पल पेपर पे, या उसको कहते हैं कि एक एल्गोरिदम लिख के दिखाएं या सूडो कोड लिख के दिखाएं, वो मोस्ट लाइकली डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही होगा। राइट। तो इनको इनको अच्छी तरह से तैयार करें। देन ऑफ कोर्स डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम एंड द कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, एटसेट्रा। इस तरह के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको भी प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, इसके अगेंस्ट भी चीजें आती हैं। देन फिर डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग, इस तरह के जो कुछ, स्पेशली अगर आप डेवलपमेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, जस्ट टू फिगर आउट कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ठीक है। तो टारगेटेड रिस्पॉन्स इसके आगे हो गया कि क्लियर और कंसाइज डेफिनेशंस बताएं, इनकी इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं, इनकी यूसेज बताएं, यूज द एनालॉजीज टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ठीक है। और बी प्रिपेयर कि आपसे वो रियल टाइम और इसी से रिलेटेड काउंटर क्वेश्चंस भी हों, और हो सकता है आपको कोई पेपर पे कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के दी जाए, या व्हाइट बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाए। ठीक है, या फिर स्क्रीन शेयर करके आपको कहा जाए कि अपना नोट पैड खोलें और ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, 5 से 10 मिनट मिलेंगे, आप उस प्रॉब्लम सॉल्व करें, और देन वो फिर प्रॉब्लम चेक की जाती है, और आप उससे उससे रिलेटेड भी फिर बाद में काउंटर क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने ये अप्रोच क्यों की। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि मैंने ये अप्रोच क्यों यूज की। तो इस तरह इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज जो बड़ी टर्न ऑफ होती है, मैं यूजली अगर इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगर मुझे अगर स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट ये जवाब दे, तो मेरी भी कोशिश होती है कि अगले 2 मिनट के अंदर इंटरव्यू को रैप अप कर दूं, कि फायदा नहीं है कोई स्पिरिट। ये नेवर से कि आई स्टडीड दिस इन एक्स सेमेस्टर, अब मुझे अब याद नहीं आ रहा। आप अगर डिग्री करके आ रहे हैं और आपने सीवी के अंदर कोई चीज मेंशन की हुई है, आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं आपको याद नहीं आ रहे, तो एम्प्लॉयर के पास फिर इतना टाइम नहीं है कि आपको बाद में ये चीजें सिखाई जाए। कि ये बेसिक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। बेशक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी या 8th सेमेस्टर में पढ़ी थी, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, बिकॉज आप डिग्री लेके आ रहे हैं। राइट। सो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्पेशली जो है, जो कि पहले 2-3 सेमेस्टर्स के अंदर पढ़े जाते हैं, इनको बार बार याद कीजिए, इंटरव्यू के लिए इनको प्रिपेयर करें। तो देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल जो कि बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो उनके उनके आंसर्स पढ़िए, उनको याद करें, उनको प्रैक्टिस करें, बिकॉज अदरवाइज हो सकता है कि वो जो इंटरव्यूअर है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करे,
और कोशिश उसकी ये होगी कि मैं इस इंटरव्यू को रैप अप करूं एंड गो फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट, राइट। अच्छा जी, अगली स्लाइड, द प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट। ठीक है, अब ये वो चीज़ है कि जहाँ पे डीप डाइव इनटू डाटा स्ट्रक्चर, आपने बता दिया कि डाटा स्ट्रक्चर के या ओप्स के कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे गए, आपने वो बता दिया, ठीक है। अब कुछ डिटेल के अंदर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिवन अ डाटा सेट ऑफ एक्स, हाउ वुड यू एफिशिएंटली फाइंड वाई, दिस टेस्ट योर चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, तो आपसे वो पूछेगा कि अब आपने इसको करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, आपने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है। देन फिर अगेन एक्सपेक्ट सम काउंटर क्वेश्चंस कि आपने ये अप्रोच क्यों यूज की, आपने अरे यूज की, आप इसकी जगह वेक्टर भी यूज कर सकते थे, या आपने वेक्टर यूज किया, आप अरे भी यूज कर सकते थे। ठीक है, इस तरह की चीजें लोग पूछते हैं। एंड देन वाइट अबाउट अ फंक्शन टू टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। तो ये भी एक लिंक लिस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी फेवरेट टॉपिक होता है इंटरव्यूअर्स का फॉर द डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। इनको तैयार कीजिए। एंड हाउ वुड यू डिटरमिन इफ अ बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, सर्चिंग और सॉर्टिंग के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, इसके एल्गोरिदम्स भी दिए जाते हैं, और इससे इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को, इन डाटा स्ट्रक्चर्स को वो कीजिए। टारगेटेड अप्रोच क्या है कि क्लैरिफाई। अगर आपको आंसर क्वेश्चन से ऐसा समझ नहीं आया, आप पूछिए दोबारा, बिकॉज वो आपको सिचुएशनल को चीज़ दे रहे हैं, तो आप उससे आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन टू फुली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वर्बलाइज। अगर अगर आप डिस्कशन हो रही है, आपसे वो रिटर्न नहीं कुछ करा रहे, तो बताइए, टॉक थ्रू योर थॉट प्रोसेस, कि अपना अपना थॉट प्रोसेस बताएं उसमें, और देन बताइए कि आपने ये अप्रोच क्यों यूज की है। एंड देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कवर करने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये फर्दर ऑप्टिमाइज भी हो सकता है। अभी तो मैंने फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपको बता दी, लेकिन हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आफ्टर प्रोवाइडिंग अ वर्किंग सॉल्यूशन, डिस्कस द पोटेंशियल ऑप्टिमाइजेशन, कि हम इसकी जगह ये कर लें तो ये ऑप्टिमाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बताना इंपॉर्टेंट है कि नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई। सेकेंडली, अपना थॉट प्रोसेस जरूर बताएं। और देन फिर अगर उसके अंदर आपको कोई ऑप्टिमाइजेशन ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन आती है, तो वो जरूर मेंशन कीजिए। ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है कि हाँ, ये इसका इसका अच्छा थॉट प्रोसेस है और ये ऑप्टिमाइजेशन की तरफ सोच रहा है ये कैंडिडेट, कि ये फर्दर की तरफ ऑप्टिमाइज, डिफरेंट अप्रोचेस की तरफ देख रहा है, अल्टरनेटिव्स की तरफ सोच रहा है। ठीक है, तो इसका दैट्स मीन कि ही हैज अ गुड थॉट प्रोसेस। अच्छा जी, फिर कुछ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल ब्रेन दी अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन ऑफ द ऑपरेशंस। अब ये स्लाइड स्पेसिफिकली मैंने डाली थी जो कि स्टूडेंट्स हैं जो कि एआई मशीन लर्निंग इंथुजियास्ट हैं, या अगर आप कोई एआई मशीन लर्निंग रिलेटेड जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, एआई मशीन लर्निंग बेसिकली क्या कर रही है, जो आपके टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस होती हैं उनको ऑटोमेट करती है। ठीक है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का कम की जाती है, ताकि मैन वर्सेस मशीन जो है वो एक्यूरेसी जो है ना ज़्यादा लाई जाए। ठीक है, तो इससे इससे रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि एक्सप्लेन बिटवीन दी सुपर डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री लर्निंग, राइट। इसी तरह ओवरफिटिंग क्या चीज़ होती है, हाउ यू प्रिवेंट इट, डिस्क्राइब द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल क्या होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि रिलेटेड टू टू एआई और मशीन लर्निंग है, वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा भी है तो कुछ मैंने बेसिक कुछ क्वेश्चन बताए, लेकिन डेफिनेटली इसी इसी से देन फर्दर डिटेल्स और इन डेप्थ क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर्स हैं वो पूछते हैं। ठीक है, टारगेटेड रिस्पॉन्स इसका क्या है कि गो बियॉन्ड द डेफिनेशंस। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अपना आंसर जो है वो बताएं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताएं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट किया था, अगर उसमें उस पे आपने क्या अप्रोच यूज की थी। इससे रिलेटेड कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का पूछता है, तो आपने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल अगर कहीं यूज किया हुआ है अपने, या आपने उसका कोई अल्टरनेटिव यूज किया हो, तो वो एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इससे ताकि ये पता चले कि आपको खाली डेफिनेशंस या बुकिश नॉलेज नहीं, आपका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, राइट। तो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि वो बच्चे जो कि अभी अभी ग्रेजुएट्स होने वाले हैं, वो प्रैक्टिस किए कर रहे हैं, वो खुद से कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बना के उनको उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, डिफरेंट हैकाथॉन्स के अंदर जाएं,
डिफरेंट जो जो कोई एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं या आपके एक्सपर्ट मेंटर्स हैं उनके गिटहब में जाके उनका कोड रीड करें। ठीक है, तो उससे आपका आपका एक एक जहन आपका खुलता है, आपको डिफरेंट अप्रोचेस का पता चलता है। और ये सारी की सारी चीजें आपको आपके जो शुरू कैरियर के शुरू के जो इंटरव्यूज हैं उसमें बहुत काम आती हैं। बिकॉज पहले इंटरव्यू में जब आप अपेयर हो रहे होते हैं या फर्स्ट जॉब के लिए जब अपेयर कर रहे होते हैं तो आपके पास FYP के अलावा मोस्ट लाइकली कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो उन चीज़ों को वो ओवरकम करने के लिए तो इस तरह के अप्रोचेस जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, ये स्लाइड फॉर एग्जांपल डाटा साइंस या डीबी डीबी रिलेटेड, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, उनके लिए है कि फ्रॉम द रॉ डाटा टू एक्शनेबल इंसाइट्स। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, डाटा क्लींजिंग आप कैसे करते हैं, आप कोई कोई अपना प्रोजेक्ट या कोई चीज बताएं जहाँ पे आपने सीक्वल के थ्रू डाटा मैनिपुलेट किया हो, लार्ज साइज डाटा की बात हो रही है, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज की बात हो रही है, AB टेस्टिंग क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टारगेटेड रिस्पॉन्स इसमें क्या है कि शोकेस योर प्रैक्टिकल स्किल्स, वॉक द इंटरव्यू थ्रू अ प्रोजेक्ट अगेन, कि आपने उसमें किस तरह से अपना डाटा मैनिपुलेट किया था, लार्ज डाटा सेट था उसको कैसे क्लीन किया था, उसको कैसे सोर्स किया था। ठीक है, इस तरह की चीजें इसके अंदर मेंशन कीजिए। उसको स्ट्रक्चर, एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सेट आपको मिला था तो आपने उसको स्ट्रक्चर कैसे किया था, या अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो देन एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए आपने करना कैसे है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल भी कोशिश कीजिए करें और इससे रिलेटेड लिटरेचर भी पढ़ें। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई मीडियम आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ और डिफरेंट कोई बुक्स पढ़ें, तो इट 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 विल डेफिनेटली इनहेंस योर थॉट प्रोसेस। और और डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई सीक्वल क्यूरी, एक तो जैसा मैंने बताया कि कोई एल्गोरिदम लिखवाते हैं रिलेटेड टू डाटा स्ट्रक्चर। इसी तरह एक और फोकस बहुत ज़्यादा होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और उसमें आपसे कहते हैं कि अब आप मुझे ये डाटा जो है ये सिलेक्ट करके दिखाएं, और मतलब कोई सीक्वल क्यूरी, कॉम्प्लेक्स सीक्वल क्यूरी आपको लिखने के लिए दी जा सकती है। ठीक है, तो आपकी एक एक तो डाटा स्ट्रक्चर और दूसरी डाटा बेसिस, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप डाटा साइंस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर तो कोई मतलब कोई जस्टिफिकेशन, कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि आपको सीक्वल ना आती हो। राइट, इट इज इम्पोर्टेंट। चलिए जी, अगली स्लाइड में जाने से पहले एनी क्वेश्चन सो फार? ताहिर, खन्ना, एनी क्वेश्चन Well, इन द sir, चैट? there is a request कि आप slides share कर दें बाद में. हो Whether I जाएंगे, request slides? Yes, हो sir. हो जाएंगे, डेफिनेटली हो Okay. अस्सलाम जाएंगे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ये लास्ट बात क्या की मुझे समझ नहीं आई। क्या 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 चीज़ें सही होनी चाहिए? एक डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा एसक्यूएल। जी जी, आपके अगर आप फॉर एग्जांपल डाटा साइंस की या डाटा इंजीनियरिंग की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके आपकी फिर डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली सीक्वल, कॉम्प्लेक्स सीक्वल क्यूरीज आपको लिखनी आती हों। राइट, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मतलब ये देखें, अब ये चीज़ें नहीं लोग पूछते कि आप फॉरेन की और प्राइमरी की में क्या फ़र्क है। ये शायद जब मैंने ग्रेजुएट किया था उस वक्त शायद बड़ा एक फेवरेट क्वेश्चन होता था, लेकिन अब इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अब लोग पूछ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड कैसे होता है। ठीक है, डाटा सोर्सेज कैसे, डाटा पाइपलाइंस कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, तो अब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में ना वो ज़्यादा उन पे फोकस है। तो और उसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरीज आपको दी जाती है कि आप कुछ कोई आपको प्रॉब्लम देंगे कि यार इस तरह की, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इनर जॉइन आउटर जॉइन आपको लगाने पड़े, एक ऑप्टिमल क्यूरी आपको लगानी पड़े। ठीक है, तो उस तरह के आपको एग्जांपल्स कोई क्वेश्चंस दे दिए जा सकते हैं जिसपे आप सीक्वल क्यूरी आप उनको पेपर पे या व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट कि डोंट, जब भी आपको कोई मतलब प्रॉब्लम दी जाए कि अब आप इसको कोड करके दें, पेपर के ऊपर सूडो कोड करें या फिर किसी भी लैंग्वेज में कोड करें, डोंट बॉदर अबाउट दी सिंटेक्स एरर्स। राइट, आपकी अप्रोच, आपकी लॉजिक ठीक होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो सिंटेक्स एरर्स पे कि सेमी कॉलन लगा या नहीं लगा, ठीक है, तो वो इतनी इतनी डिटेल में कोई जाके देखता नहीं है।
उसके लिए फिर ये होता है कि नॉर्मली क्या करते हैं कि सिंटेक्स इस तरह की चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल पाइथन रिलेटेड बहुत ही स्पेसिफिक जॉब है, तो आपको हो सकता है इंटरव्यू में आने से पहले कोई असाइनमेंट दे दी जाए कि आप इसको पाइथन में कोड करके लाएं या आप इसको जावा में कोड करके लाएं, और वो आपकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस पार्ट हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द इंटरव्यू सिंटेक्स एरर को कोई इतना बॉदर नहीं करता। ठीक है, उस पर कोई कंसर्न नहीं होता। मेन कंसर्न उस पर आपकी आपकी अप्रोच होती है, आपकी लॉजिक होती है। राइट। सर डेटा साइंस इंटरव्यूज के लिए एसक्यूएल के अलावा और कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं? देखिए, मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे आपको ए बी टेस्टिंग का मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का मालूम होना चाहिए, डाटा क्लींजिंग का मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डाटा साइंस के अंदर क्या होता है कि आपने कोई डाटा पाइपलाइन से डाटा सोर्स आपने लिया, ठीक है, आप अपने डाटा को क्लीन करते हैं, और देन फिर आपकी एनालिटिकल स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम के मुताबिक आपने देखना है कि मैंने इसमें से क्या रिजल्ट निकालने हैं इस डाटा में से। ठीक है, तो वो आपकी एनालिटिक्स जो डाटा एनालिसिस है, वो अप्रोच काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि डाटा साइंटिस्ट की किसी भी एंट्री लेवल जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। सर ठीक है, अब ऐसा होता है कि रिजल्ट। डेटा साइंस काफी वास्ट फील्ड है ना, तो उसमें कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं वो मशीन लर्निंग का भी काफी कह रहे होते हैं। तो नहीं, देखें, ये बेसिक तो आपको एक तो अगेन आप ये देखें कि आप वो जो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ योर डाटा साइंस, नो डाउट। तो वो भी डेफिनेटली आपको वो चीज़, आपने डाटा को ट्रेन कैसे करना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम चाहिए। राइट डाटा सेट आपने किस तरह से ट्रेन करना है, राइट और रॉन्ग डाटा सेट्स के अंदर आपने उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो तो ये इंपॉर्टेंट कोर हैं जो कि किसी भी डाटा साइंटिस्ट को ना आने चाहिए। और जिसका आजकल के ये भी है कि एम्प्लॉयर ज़्यादा ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि डाटा डाटा सिलेक्शन, उसको डाटा इंजीनियरिंग की चंद एक चीज़ें कि उसको राइट डाटा पिक करना और सिमिलरली उस डाटा को क्लीन करना, ये भी एक एक जूनियर डाटा साइंटिस्ट को डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, और देन ऑफ कोर्स जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उनका उनका आइडिया ऑफ कोर्स वो आपको एक एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज तो एक पहली जॉब के लिए तो आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं भी है। ओके सर, थैंक यू। Right. चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन। अब ये टेक्निकल भी हो सकते हैं, ये जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और ये कोई बिहेवियरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बिहेवियरल होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाता है कि आपने कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया तो उसमें चैलेंज किया था और आपने उसको हैंडल कैसे किया। ठीक है, अब देखें, ये एक बड़ा ब्रीफ सा क्वेश्चन है, बड़ा जनरलाइज सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका टेक्निकल आंसर भी बन सकता है, इसका अ, एक जनरल आंसर भी बन सकता है। ठीक है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। आपने क्वेश्चन को समझ के वट एवर द सिचुएशन दैट यू हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट, आपने उसको उसको एक्सप्लेन करना है, बट यू नीड टू बी वेरी मतलब वेल प्रिपेयर्ड अबाउट अबाउट दीज सिचुएशंस, कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया हो कभी, उसके अंदर क्या चैलेंजेस थे, आपने किस तरह से ओवरकम किया। ठीक है, तो उसमें आप कुछ टेक्निकल डिटेल्स के साथ भी जा सकते हैं और कुछ जनरल अप्रोच भी बता सकते हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया अपने टीम मेंबर के साथ, बिकॉज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, और हो सकता है आपने एफआईपी बिल्कुल अकेले किया हो या किसी एक टीम मेंबर के साथ किया हो, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने जाते हैं तो you will get an opportunity to work with a team of at least 5 to 6, एक स्क्रम टीम जो होती है उसके अंदर, जिसके अंदर 6 से 7 इंजीनियर्स होते हैं। राइट, तो जब 6 से 7 इंजीनियर्स होते हैं तो उसमें उसमें डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, और आपके वैसे भी कभी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे कितने, किसी प्रोजेक्ट में, किसी असाइनमेंट में। तो डेफिनेटली ये पूछा जाता है कि एक आपका कॉन्फ्लिक्ट आया और आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया, कि उसका उसका मकसद बेसिकली क्वेश्चन का ये है कि कॉन्फ्लिक्ट का मिनिमम इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे पड़ना चाहिए। तो आप किस तरह से आप अपने पर्सनल नहीं होते, आपने ये देखना है कि मैंने प्रोजेक्ट को कैसे ठीक करना है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे क्यों रिजॉल्व होना है, इसलिए जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट मेरे प्रोजेक्ट पे, मेरे काम के ऊपर है। एम्प्लॉयर ये सुनना चाहता है। एम्प्लॉयर ये नहीं सुनेगा कि यार मैंने उससे जाके बस वो कर लिया, माफी मांग ली, या मैं तो अड़ा रहा, उसने मुझसे माफी मांगी। ठीक है, तो कन्फ्रंटेशन जो होती है वो हमेशा एक एक नेगेटिव अप्रोच समझी जाती है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ठीक है,
लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस जो है वो ऑलवेज उनको उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो उस प्रोजेक्ट को या उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर उनके उनके बिजनेस के ऊपर आएगा। सिमिलरली एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि हैव यू एवर मिस्ड अ डेडलाइन, व्हाट डिड यू डू, राइट? इसका कोई आंसर दे मुझे कि अगर डेडलाइन मिस हो रही हो क्या करेंगे आप? एनीवन? मैं एक्चुअली लिस्ट देख नहीं पा रहा इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई कोई भी रैंडमली, कोई मैं सर एनीवन। बोल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बोलें, अपना नाम बता दीजिए सर पहले। प्रायोरिटाइज करेंगे उबैदुल्ला साफी। उबैद अल्लाह साफी जी, उबैद। प्रायोरिटाइज करेंगे, जो टास्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले करेंगे और जो टास्क लेस इम्पोर्टेंट है उसको बाद में करेंगे। दैट्स गुड। इसके अलावा कोई? सर अगर डेडलाइन सर मिस हो गई है तो आई विल ट्राई के प्रोजेक्ट का जो स्कोप है या जो भी डिलीवरेबल्स है वो कंप्लीट करके रिक्वेस्ट करें जो जिनको सबमिट करवाना था, और उनको बताया जाए कि प्रोजेक्ट स्कोप थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए टाइम हो गया। तो आई विल होप दे विल अंडरस्टैंड। हम्म, ठीक है। देखिए पहली चीज़ है कि आपको जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, कोई भी टीम को प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, उसको उसको ये मालूम होता है कि मैं ऑन ट्रैक हूँ या आउट ऑफ ट्रैक चल रहा हूँ। अगर आपको ये अगर ये लगता है कि मैं इतना डी ट्रैक हूँ कि मैं इसको टाइम पे फिर भी मैं टाइम पे कंप्लीट कर लूंगा, देन इट इज़ ओके। ठीक है। उस पे फिर उबैद वाली बात की, उबैद ने कहा कि आप उसको थोड़ा सा जो प्रायोरिटी आइटम्स हैं उन पे आप फोकस अपना ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपनी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि नहीं, इसको प्रायोरिटी को किए करने के साथ भी मैं अगर लेट हो रहा हूँ, तो देन फिर आप इन्फॉर्म करते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, अपने अपनी लीडरशिप को, अपने क्लाइंट को, ठीक है, या अपने प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को, कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें, ये प्रोजेक्ट इस तरह से डिले जा रहा है विद रीजंस। ठीक है, और रीजंस फिर ऑफ कोर्स वो होनी चाहिए कि आप बताएं कि यार इसका इसमें कुछ प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस आई हैं या हमने जो एंटिसिपेट किया था उससे हट के कुछ चीज़ हो रही है। एक वैलिड रीजंस होनी चाहिए ताकि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो फिर डिसीजन ले सकें और क्या वो आपके प्रोजेक्ट का टाइम एक्सटेंड करें या फिर आपके प्रोजेक्ट का स्कोप कम करें। ठीक है, या फिर आपकी जो लीड कंपनी की लीडरशिप है वो उस पर रिसोर्सेज ज्यादा लगना है, किस तरह से करना है, तो ताकि जो भी करेक्टिव एक्शन है वो लिया जा सके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिवेंट करना है। प्रिवेंटिव एक्शन आपका ये होता है कि आपने डेडलाइन को मीट करने के लिए ऐसी तमाम चीजें करनी है जो कि आपको आपको हेल्प करें कि आप प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे टाइमली कंप्लीट कर सकें। राइट, तो इस तरह के मतलब क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपने क्या किया। ठीक है, इसकी टारगेटेड अप्रोच क्या है? स्टार मेथड। ये बड़ी कॉमन अप्रोच है जो कि सर किसी ने शायद पढ़ी होगी। सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट्स। सिचुएशन क्या होती है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट कि हुआ क्या था, सिचुएशन क्या बनी, और देन फिर आपके पास टास्क क्या था, आपका रोल, स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी जो कि आपने उस सिचुएशन को एड्रेस करना था। ठीक है, और देन फिर अपने एक्शंस बताएं कि आपने क्या किया। आपके पास ये टास्क थे, आपने करने थे, सिचुएशन ये होगी थी, लेकिन आपने एक्चुअली किया क्या, आपकी क्या एक्शंस थे। एंड देन ऑफ कोर्स मेंशन द रिजल्ट्स कि आपके एक्शंस की बेस के ऊपर रिजल्ट क्या आया। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए जो कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन ये सिचुएशन हुई, बिकॉज ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, तो स्टार मेथड जरूर जहन में रखें। कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव अगर आंसर देना है तो आप उसको सिचुएशन, आपका पर्टिकुलर रोल उसमें कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, फिर आपने उसको करने के लिए क्या किया। हो सकता है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी की हो और आपने किसी और को भी हेल्प किया हो। राइट, अगर आपने सिर्फ किसी और को हेल्प किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, देन अगेन दैट्स अ फेलियर। राइट, तो पहले पहले अपनी चीजें कंप्लीट करके आप किसी को हेल्प करें। वो कहते हैं ना, जहाज में भी अगर किसी ने एरोप्लेन में सफर किया है तो वो उसको एक बड़ी चीज बताते हैं कि आपके साथ आपके ब्लड रिलेटिव भी क्यों ना साथ बैठा हो, लेकिन अगर जहाज में इमरजेंसी हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना मास्क लगाना है, देन फिर साथ वाले की मदद करनी है। राइट, तो यही सिचुएशन बेसिकली प्रोजेक्ट्स के अंदर भी होती है कि पहले जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फोकस करें। ठीक है, और देन फिर दूसरों को हेल्प जरूर करें और करनी भी चाहिए टीम वर्क के अंदर। और लेकिन यह कि आपका रोल जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सफर ना हो। मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली।
एंड देन ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आपने क्या अचीव किए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर इस चीज को स्टार मेथोडोलॉजी को जरूर जहन में रखें। ठीक है, ये एक एग्जांपल है छोटी सी कि सिचुएशन फॉर एग्जांपल इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आवर टीम वाज टास्क्ड with the building of mobile app for a campus navigation, but we had a very tight deadlines for 2 months. ठीक है, तो आपका रोल इसमें क्या था कि माय रोल वाज टू डेवलप द बैक एंड एंड इंटीग्रेट द मैपिंग एपीआईज, राइट। तो इसमें आप फ्रंट एंड नहीं कर रहे थे, फ्रंट एंड करने वाला कोई और था, जो मोबाइल ऐप एक्चुअली बना रहा था वो कोई और था, आप बैक एंड पे फोकस कर रहे थे। आपने एक्शन क्या किया, आई ब्रोक डाउन द टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्प्रिंट्स। I use Git for version control to ensure the smooth collaboration and held daily stand-up to track the progress and address my any roadblocks. And then when we faced an issue with the API integration, I spent extra time researching documentation and reach out to an outline developer community for a solution, right? कि आपने अपनी चीज़ों को करने के लिए आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को आपने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, एक्शन आपका क्या था, आपने ऑर्गेनाइज किया कि अपने टास्क को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, उसको छोटे स्मॉलर टास्क के अंदर वो करके, और देन फिर आपने अगर जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ा वहां पे वो भी आपने किया कि आपका एपीआई का कुछ हुआ, और देन फिर आपने हेल्प भी ली, आपने कोई डेवलपर कम्युनिटी से हेल्प ली, राइट। तो ये आपके एक्शंस हो गए, और रिजल्ट क्या आया, एज अ रिजल्ट वी सक्सेसफुली डिलीवर्ड द फंक्शनल प्रोटोटाइप ऑन टाइम which received a positive feedback from our professors. And this experience taught me the importance of agile methodologies and proactive problem solving. ठीक है, जो आपने स्प्रिंट्स के अंदर काम किया, जो आपने अपने अपने टास्क को ब्रेक करके सब टास्क के अंदर कन्वर्ट किया, सो दैट इज यू लर्न द एजाइल मेथोडोलॉजी। प्रैक्टिकली आपने जो है एजाइल को प्रैक्टिस कर लिया इस तरह। तो ये आपके रिजल्ट्स थे, राइट। तो इस तरह से जहन में रखें कि इस तरह के कोई क्वेश्चंस आए तो आप इन 4 चीजों को जरूर जहन में रखें, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट्स। और भी होंगी, बट मेरे ख्याल में मैं जो जिस चीज को फॉलो कर रहा होता हूँ या मैं सुनना चाहता हूँ जब मैं किसी से इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, तो इसकी इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। अगर स्टार को जहन में रखिए, आप इसके जवाब दें अपने क्वेश्चन का। थिंकिंग ऑन योर फीट, थिंकिंग ऑन योर फीट इज एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। अच्छा, आप पहले जो इंटरव्यूज होते हैं, जो फर्स्ट इंटरव्यूज, उसमें स्क्रीनिंग के अंदर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ आपसे क्वेश्चन वैसे जनरली पूछे जा सकते हैं, ड्यूरिंग द इंटरव्यू को पूछ सकते हैं, राइट। ये थोड़े से हटके होते हैं आपके एकेडमिक उन चीजों से, ठीक है। ये एनालिटिकल क्वेश्चंस है। अब इसमें आप देखें जिस तरह कि इनका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है, ये सिर्फ आपको देखा जाता है कि यार इनकी आपकी अप्रोच क्या है। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन फिर भी आपकी क्या अप्रोच है उनको बताने में, ठीक है। लाइक हाउ मेनी टेनिस बॉल कैन फिट इन अ कार, राइट। अब इसका इसका क्या आंसर होगा इस पे? ऑफ कोर्स आप इसको कोई असम्पशंस करेंगे। आप पहले ये पूछेंगे, अच्छा यार गाड़ी कौन सी है, ये सेडान है, एसयूवी है, या कोई पिकअप है, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा यार कि मतलब कितनी बड़ी गाड़ी है तो उस पर कितनी बॉल्स आ सकती हैं। टेनिस की बॉल का थोड़ा सा आपको आइडिया होता है इसका क्या डायमीटर है, तो उसी बेस पे आप एक मतलब आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कोई काउंटर क्वेश्चंस करें, कोई क्लैरिफिकेशन लें, ठीक है। तो बेसिकली मकसद ये होता है। सिमिलरली एस्टिमेट योर नंबर ऑफ डेली यूजर फॉर अ पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इन योर सिटी, राइट। इस तरह की चीजें आपका वो कैसे देख के करेंगे। हाउ वुड यू डिजाइन अ सिस्टम फॉर अ फूड डिलीवरी सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब आपने कोई फूड डिलीवरी सर्विस वहां पे बना के नहीं दिखाने इंटरव्यू में, लेकिन आपसे अप्रोच पूछी जा रही है कि यार आपके अप्रोच क्या लोगे। आप उसकी पहले रिक्वायरमेंट्स क्लियर करोगे, आप ये देखोगे कि मतलब वो कितने आपने रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड करने हैं, आपके अप्रोच क्या होगी, आपका आपका विजन क्या होगा, आपने क्लाइंट को क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज देनी है, एफिशिएंट चीज देनी है कि वो आपकी आपकी ऐप को यूज करना चाहे, ठीक है। तो टारगेटेड रिस्पॉन्सेज इस पे क्या है, ब्रेक इट डाउन, कि इसको आप क्या करें, डीकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर एंड लॉजिकल स्टेप्स, राइट। और फिर स्टेट योर अजम्पशंस, ठीक है। कुछ कुछ अपनी बताएं कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं एज्यूम नहीं कर रहा तो वो खुद आपको बता देगा कि नहीं यार, ये मैं जो गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि वो एसयूवी नहीं, वो सेडान गाड़ी है। वो आपको आप कहेंगे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एसयूवी है, ठीक है। तो एज्यूम योर मतलब मेक सम assumptions and walk through your logic, ठीक है। walk them through your logic,
कि बताएं कि आप ये अप्रोच क्यों ले रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग फॉर ईच स्टेप ऑफ योर कैलकुलेशन एंड तो मेन मकसद इस तरह के क्वेश्चन पूछने का है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कि आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो उस पर देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक प्रिंसिपल है ना कि जब आपके पास एक कई दफा ऐसा होता है कि आपके पास एक वन लाइनर स्टेटमेंट आती है जिससे आपने पूरा प्रोजेक्ट ड्राइव करना होता है। ठीक है, अब उसकी अप्रोच क्या होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं, आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं, आप एक क्लाइंट से एक इंटरव्यू करते हैं, कोई वर्कशॉप्स करते हैं। अब इन सारी चीज का मकसद क्या होता है कि आप जो है अ, अपनी क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को। तो इस तरह के क्वेश्चन से भी इसलिए पूछे जाते हैं कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स और प्लस आपकी आपकी अप्रोच क्या है जिस तरह से आप किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। एक बड़ा अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके कुछ प्लान्स के बारे में बात की जाती है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, 10 years, व्हाटएवर, 3 years, आपके आपके नेक्स्ट 5 years के गोल्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन दिस रोल, ये पूछा जा सकता है आपसे। एंड हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। ठीक है, इसमें अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, कोई ये नहीं सुनना चाहेगा कि मैं आपसे पूछे कि आप अपने आप को 5 साल में क्या देखते हैं, आप भी कहें जी कि मैं तो 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके आगे पढ़ने चला जाऊंगा, तो वो कहेंगे यार मैं आपके 6 महीने क्यों इन्वेस्ट करूं। ठीक है, तो टारगेटेड रिस्पांस क्या होना चाहिए कि आप अपने अपने जो जिसको इंटरव्यू दे रहे हैं उनको ये चीज रियलाइज इंश्योर कराएं कि आई वांट टू ग्रो हेयर। मैं आपकी कंपनी की पूरी रिसर्च करके आया हूँ, आई एम अलाइन विद द कंपनी, कि मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो सिंक करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के साथ। ठीक है, एंड सिमिलरली एक्सप्रेस द डिजायर फॉर द ग्रोथ, मेंशन कीजिए उसको कि स्पेसिफिक स्किल सेट जो कि आप डेवलप करना चाहते हैं जो कि इस कंपनी के साथ भी अलाइन। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कह दें कि एक कंपनी जो कि सिंपल, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी के अंदर बनाए जो जो कि डाटा सेंटर्स पे काम करती है, लेकिन आप उसको ये कह रहे हैं कि मैं तो क्लाउड इंजीनियरिंग पे काम करना चाहता हूँ, तो वो क्लाइंट डेफिनेटली इससे डिसअपॉइंट होगा। वो ये कहेगा कि यार इसका तो फोकस बिल्कुल ही डिफरेंट चीज के ऊपर है, डिफरेंट अप्रोच की है, जो कि हमारा कोर बिजनेस है ही नहीं। ठीक है, तो आपका जो लर्निंग का वो है ना पाथ, वो भी अलाइन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, ये आप इसके इसके आप कॉन्फिडेंटली आंसर कब दे सकते हैं, सिर्फ उस वक्त जब आपने एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी तरह पढ़ी थी और उसके अलावा आपने इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी के बारे में पढ़ा था, उसकी रिसर्च करके गए थे, उसकी वेबसाइट देखी थी, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी थी कंपनी की। तो उससे आपको फिर आइडिया होता है कि बेसिकली कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, कंपनी की अप्रोच क्या है, वो चीज बताते हैं। और शो योर पैशन, बताइए बताइए कि टॉक अबाउट द टेक लॉग्स जो कि आप फॉलो करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जो कि आप ले रहे हैं या आप फोकस कर रहे होते हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो कि आप जिन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैशन आप जरूर एक्सप्रेस करें, टेक रिलेटेड पैशन, ताकि ताकि लोग जो है उस पे वो उनका एक कॉन्फिडेंस बन सके। अच्छा, फिर एचआर और लीडरशिप क्या देख रहे होते हैं। ठीक है, बियॉन्ड द कोड, असेसिंग योर फिट, कि आप कितने फिट हैं, आप कितने लाइन है फॉर फॉर दिस जॉब, आर यू गुड फिट फॉर द कंपनी और नॉट। ठीक है, अब लीडरशिप इसमें है, उसके लिए वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद योर ओवर कंपनी, राइट। फिर कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये अक्सर लोग जो है इस पे रह जाते हैं, लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का नहीं पता होता, तो दैट्स मीन कि जिनको नहीं मालूम, तो दैट्स मीन कि वो अपने आप को सही तरह से नहीं जानते। ठीक है, और दूसरी चीज के वीकनेस को, मेरा मेरा जो राइट अप्रोच होती थी जब मुझसे ये सवाल पूछा था आपकी वीकनेस क्या होती थी, तो मैं इसका जवाब अपॉर्चुनिटीज की बेस पे देता था, कि मैं ये कहता था कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ये चीज सीखने की, इसको ठीक करने की। वीकनेस इज अ नेगेटिव वर्ड। तो आपकी अप्रोच भी यही होनी चाहिए कि आपको वट एवर द वीकनेस दैट यू थिंक या लोगों ने आपको बताई है, तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी उनको एक्सप्लेन करें कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ठीक करके मजीद बेहतर हो सकते हैं, राइट। एंड हाउ टू हैंडल द प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब अगेन इनके कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन प्रिपेयर करने हैं इसको, आपको इस पे आपको मतलब पूरे के पूरे
एसेज मिल जाएंगे, पूरी पूरी रिसर्च मिल जाएगी एक एक क्वेश्चन के ऊपर। बट मैं ये चाहूंगा कि आप ये इस तरह के क्वेश्चंस को खुद से एनालाइज करके इसके आंसर प्रिपेयर करें, राइट। एंड टेल अस अबाउट आवर कंपनी प्रोडक्ट एंड वैल्यूज। तो यहाँ से आपको मतलब वो जो पूछेंगे कि यार कि हम लोग क्या आप हमारी कंपनी को कितना जानते हैं। ठीक है, इसकी अप्रोच क्या है कि डू योर रिसर्च, के अंडरस्टैंड द कंपनी मिशन वैल्यूज एंड रिसेंट अचीवमेंट्स। अगेन उसका पोर्टफोलियो कंपनी का देखें, कंपनी के सोशल्स पे जाके कंपनी को फिगर आउट करें कि वो क्या है। बी अथेंटिक। That when discussing your weakness, choose a real weakness and talk about the steps you are taking to improve। ठीक है, ये ना बताएं कि आपकी ये वीकनेस है लेकिन आपने इसको ठीक करने के लिए कभी कुछ किया नहीं। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि आप शाय हैं, आप इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आप इसके लिए बताएं कि मैं इवेंट्स अटेंड करता हूँ, मैं डिफरेंट मीटिंग्स में जाता हूँ, मैं टोस्ट मास्टर की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, मैं डिफरेंट लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो ठीक मैं प्रेजेंटेशंस देने की कोशिश करता हूँ, मैं आईने के आगे खड़ा होकर बात करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज बताएं कि वीकनेस को सिर्फ वीकनेस ना बताएं, उसको एक तो नंबर वन उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें। खुद से पहले आप अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे तो देन अगले पे भी इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, और उसको अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, कि आप क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आप अवेल कर सकें। ठीक है। एंड emphasize on the soft skills, highlight your communication, teamwork, problem solving abilities। तो इसमें मतलब जो पिछले भी कुछ क्वेश्चन गुजरे उसके अंदर भी कोशिश करें कि टीम वर्क इन चीजों से रिलेटेड वो बात करें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मिस कर गए हम, कि एफआईपी में जब आप फॉर एग्जाम्पल आज से आजकल ये ट्रेंड है कि 2 या 3 लोग मिलकर एक एफआईपी बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंटरव्यूअर है वो ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि यार मेरा रोल तो बस ये था, मैंने तो बैकएंड बनाया था, मैंने बस इसकी एपीआई बनाई, मुझे नहीं पता कि बाकी जो काम था ना वो तो दूसरे ने किया था। ये आंसर्स कोई नहीं सुनना चाहेगा। आपने उसको ये आंसर देना है कि ठीक है मेरा रोल ये था, बट आई नो एवरीथिंग कि उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा था, मैंने कोड रिव्यू किया था बाकी अपने टीम मेंबर्स का, मैंने उसकी टेस्टिंग की थी, मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रूफ रीड किया था। ठीक है, कि आपने ये बताना है कि आप हर हर उसमें फेज के अंदर इन्वॉल्व थे, इवन आपका भी कोड किसी और ने रिव्यू किया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बताना कि आपको प्रोजेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग है अपने एफआईपी की। तो अगर आप ये कह देंगे कि मैंने सिर्फ बैकएंड पे काम किया था, मुझे नहीं मालूम फ्रंट एंड पे किसने काम किया, कि क्या किस किस तरह से काम किया, तो दैट दैट विल वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यू के ऊपर। अच्छा, इंटरव्यू इज अ टू वे स्ट्रीट। इसका मतलब ये है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप भी कोई क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, इंटरव्यू में तो आपके साथ फॉर एग्जांपल आखिरी 5 मिनट जनरली आपको दिए जाते हैं कि यार आप अब कोई सवाल पूछें कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इसमें फिर शो योर जेन्युइन इंटरेस्ट एंड हेल्प यू असेस इफ द कंपनी इज द राइट फिट फॉर यू। ठीक है, आपको भी काफी सारी चीजों का आइडिया हो जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि यार कि ये जगह मेरे लिए भी ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं जो पूछते हैं लोग नॉर्मली, जो पूछने चाहिए कि व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक लाइक फॉर समवन इन दिस रोल। कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या आप पूछेंगे यार जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, उनका उनकी उनका उनका वर्क डे कैसा होता है। तो और सिमिलरली व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस द टीम करंटली फेसिंग। तो दैट्स मीन कि आप क्यूरियस हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि यार जब आप इस जॉब के ऊपर इंशाल्लाह आएंगे तो क्या पहली क्या चीज आपको मिल सकती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयर भी ये सोचेगा कि हाँ यार ये प्रिपेयर होके आएगा। तो दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ दिस पोजीशन। कि आप अपनी केपीआईज जानना चाह रहे हैं कि आपकी आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर होगी, क्या चीज आप करोगे तो आप ये पता चलेगा कि हाँ यार ये आपने ठीक काम किया है। और क्या क्या डोंट्स हैं जो कि इम्पैक्ट नहीं डालेंगे आपकी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर in context of company. Now, what are the opportunities for professional development and growth within the company? ये चीज बताती है कि आप कितने कीन है लर्न करने के लिए, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप भी पूछें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे करनी है कंपनी के अंदर। एंड व्हाट योर इंजीनियर्स एंजॉय मोस्ट अबाउट वर्किंग हियर। ये कंपनी कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या है। ठीक है, तो कि जनरली इंजीनियर्स यहाँ पे खुश हैं, नाराज हैं, क्या है, तो वो एटलीस्ट आप इस तरह की चीजें, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू तो दैट विल लीव अ
very positive impact on the whole interview panel. समराइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. Preparation is a paramount. Research the company and practice your responses. Structure your answers. Use framework like STAR for behavioral questions. Think out loud. Let the interview into your thought process. ठीक है, कि मतलब आप बताएं कि आप सोच रहे हैं, आप आपका थॉट प्रोसेस है, आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं. ठीक है. तो और आप क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं टू क्लैरिफाई, तो दैट्स मीन कि यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. बी enthusiastic and inquisitive and follow up with मतलब इंटरव्यू के बाद आप ये इट्स अ गुड जेस्चर कि आप जो भी आपको इंटरव्यू इनवाइट आई थी या उस पे जाके एक बताएं कि आप थैंक यू सो मच, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर अ पॉजिटिव रिस्पांस या टू हेयर अबाउट द रिजल्ट्स एंड प्लीज गिव मी द फीडबैक इन एनी केस. राइट. ये जानिए कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो फीडबैक क्या है. एटलीस्ट पूछे जरूर, हो सकता है आपको ना बताएं, लेकिन एटलीस्ट जानने की कोशिश जरूर करें कि आपका जनरली एम्प्लॉयर ने आपके बारे में क्या. तो इस चीज़ को ऑफिशियली पूछिए कि ये ईमेल, थैंक यू की ईमेल करना, इट्स नॉट लाइक सिर्फ एक जेस्चर है. तो यू नीड टू नो द कि आपके इंटरव्यू का ओवरऑल फीडबैक क्या है. अच्छा जी, क्वेश्चंस. दिस वाज माय लास्ट स्लाइड. एनीवन? Sir, we कोई have है? a question in जी the chat. We have Miss Aska जी. asking, at times जी. companies are looking for a certain role. For example, if हम्म. I applied for a Python job, they would ask me, what if we train you for C# as well? Are you good with it? And what should be the reply? Open to learn all technologies or stay focused on what you applied for? अच्छा, देखिए, दो तरह की कंपनीज होती हैं. ठीक है. एक कंपनी होती है, प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, दूसरी होती है सर्विसेज कंपनी. ये जो अस्का ने सवाल पूछा है, इसके ये जनरली जो सर्विसेज कंपनीज हैं वहां पे ये सवाल पूछा जाता है. ठीक है. उसकी वजह ये होती है कि सर्विसेज कंपनी के अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी स्टैक बड़ा मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा था. आपका फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए है, उसके अंदर आपने किसी और टेक्नोलॉजी स्टैक में काम किया, प्रोजेक्ट बी के अंदर आपके पर कोई और टेक्नोलॉजी स्टैक काम किया. फिर मार्केट के अंदर जो ट्रेंडिंग होती है, मार्केट के ट्रेंड्स बदल रहे होते हैं बार बार. अगर तो आप सर्विसेज कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी ओपन कि यार हाँ ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी सीखना मेरे लिए कोई मसला नहीं है. अगर आपकी कॉन्सेप्ट ठीक है, आपको पाइथन आती है, तो दैट्स मीन के पाइथन मतलब मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम, अगर आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है. ठीक है. तो आप उसके लिए अपने आप को सर्विसेज कंपनी में अपनी इस चीज़ को अपने आप को इसके लिए ओपन रखिए कि यार आप कर सकते हैं काम. जो प्रोडक्ट कंपनीज के अंदर है तो वहां पे टेक्नोलॉजी स्टैक रोज रोज चेंज नहीं होता. राइट. एक प्रोडक्ट कंपनी के अंदर बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ये डिसाइड करे कि यार अब हम ना अपना जो पूरे की पूरी टेक्नोलॉजी है उसको जावा से डॉट नेट पे शिफ्ट कर रहे हैं. इट्स अ बिग डिसीजन. ठीक है. इसकी कॉस्ट है, इसका इम्पैक्ट है, जो और ये डिसीजन मतलब रोज रोज नहीं होता. ये कई दफा तो 40-40 साल बाद जाके कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि यार अब हम अपना टेक्नोलॉजी स्टैक चेंज करेंगे. ठीक है. तो और लिटरली मैंने 40 साल की मैंने बात की. ये ऐसा जनरली होता है बड़ी इंटरप्राइजेस के अंदर, ऐसा होता है कि इवन आज इन इन टुडेज वर्ल्ड बहुत सारी कंपनीज जो हैं कि वो इस टाइम पे वो कर रही हैं कि जो कि जिन्हें अपने सिस्टम्स कोबोल में बनाए थे उनको मूव कर रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में. तो टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन जो है ना, ये जनरली इतनी जल्दी नहीं होती प्रोडक्ट कंपनीज के अंदर. तो प्रोडक्ट कंपनीज के अंदर आपसे लोग इस तरह के सवाल नहीं पूछते, बल्कि वहां पे परफेक्शन देखी जाती है कि जो उनकी रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज हैं आप उनके अंदर कितने परफेक्ट हैं. इसलिए मैंने कहा कि आप जरूर ये देख के जाएं कि उस कंपनी के बारे में ये जान के वो कंपनी किस तरह की है. अगर सर्विसेज कंपनी में जा रहे हैं तो सर्विसेज बिजनेस के अंदर आपको जैकल ऑफ ऑल ट्रेड क्या क्या वो है, वो होना पड़ता है. ठीक है. तो उसके लिए ओपन रहें. कई दफा आपको लेगेसी टेक्नोलॉजी में भी काम करना पड़ सकता है. ठीक है. तो सर्विसेज कंपनी के अंदर आपको ये एक्सपेक्टेशन देनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ. हाँ, अगर देखें, अगर ये चीज़ हो रही है कि आपके उन्होंने पूछा सिर्फ जावा का था, आप जावा के डेवलपर हैं, जावा के इंजीनियर हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाके आपको ये पता चलता है कि
ये तो .NET का इंजीनियर देख रहे हैं, तो गलती देन फिर उनके एंड पे है, वो उन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो ये है इसका, मेरे ख्याल में तो ये इसका राइट अप्रोच वैसी होगी। जी सर, अ, थैंक यू सो मच। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ रही हैं कि एज अ फ्रेशर टारगेट शुड बी अ सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? इट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये जनरली जो फ्रेश ग्रेड्स होते हैं इसके बारे में बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखिए, सर्विसेज बेस्ड कंपनी में काम करने का फायदा यह है कि आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, कि आप कि कभी एक प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट बी पे काम कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट सी पे काम कर रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कि 2 से 3 साल फिर आपकी लर्निंग का जो पेस है ना बहुत ज्यादा तेज होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ये होता है कि उसके अंदर आप परफेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, लर्निंग तो हो रही है लेकिन एक खास टेक्नोलॉजी में आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो उस पर फिर ये होता है कि कई कई दफा मैंने ये देखा है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हैं लोग, वो काफी सारे साल काम करने के बाद जब दोबारा मार्केट में आते हैं तो उनको कोई और चीज सीखने में भी बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मेरी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कोशिश करें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो सर्विसेज कंपनीज को टारगेट करें, बिकॉज जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं उनको परफेक्शनिस्ट चाहिए होते हैं, जो कि उस टेक्नोलॉजी में बहुत ही स्ट्रांग हो। और सर्विसेज कंपनी के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी टू लर्न बहुत होती है, और आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक्स पे काम नहीं कर रहे होते, आप डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स जो होते हैं उनको भी सीख रहे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोजेक्ट ए जो है वो किसी एयरलाइन के लिए है, प्रोजेक्ट बी आप फिनटेक में कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सी आपका प्रोजेक्ट नंबर 3 आपका हेल्थ हेल्थ टेक के अंदर आ जाता है। तो आपको फ्लेवर मिल रहा होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज का भी। तो मेरा अपना ख्याल है कि इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि जो जो आपकी सर्विसेज कंपनीज जो होती हैं वो फ्रेश ग्रेड्स के लिए वहाँ पे लर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है, लर्निंग कर्व अच्छा होता है वहाँ पे। जी सर, जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी कॉमनली आस्क्ड, और हम्म। ये क्वेश्चन बुशरा पूछ रही है। शी इज आस्किंग कि व्हाट टू आंसर इफ दे आस्क्ड फॉर सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड आप एक फ्रेशर हो एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट। देखिए, थोड़ा सा अपना होमवर्क करके जाएं। आपको थोड़ा सा ये आइडिया पता चल जाता है कि जनरली जो जो ग्रेड्स हैं उनको क्या सैलरी वगैरह मिल रही है, इंडस्ट्री के अंदर क्या नॉर्म्स चल रहे हैं, तो अपने आप को अपडेटेड रखें इस बारे में। ठीक है, और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो बीइंग अ फ्रेश ग्रेड्स, पैसों को बहुत ज्यादा फोकस ना करें। पैसा कमाने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अपने आपके आपका जो फोकस है ना वो कैरियर ग्रोथ के ऊपर, कैरियर प्रोग्रेशन की तरफ होना चाहिए। जब कैरियर प्रोग्रेशन हो रही होती है ना तो पैसे खुद आना शुरू हो जाते हैं। लर्निंग की तरफ होना चाहिए। पहले 2-3 साल इस चीज पे फोकस ना करें कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। हाँ, जारी बात है, आप घर से निकले हैं काम करने के लिए निकले हैं, या और इवन रिमोट जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली से कटे हुए हैं, काम कर रहे हैं 8, ऑन एवरेज हर कोई 8 घंटे काम करता है, तो मेन मकसद तो उसका रिस्क कमाना ही है। ठीक है, सो इतनी अपनी आपकी इतना अपडेट जरूर होना चाहिए कि मार्केट के अंदर फ्रेश ग्रेड्स जो हैं जनरली किस तरह के हो रहे हैं। ठीक है, उनको उनको क्या सैलरीज मिल रही हैं, और वो आपको एटलीस्ट वो एक रेंज आपको मालूम होनी चाहिए। एग्जैक्ट नंबर की मैं बात नहीं कर रहा, रेंज मालूम होनी चाहिए कि यार वो 70,000 से लेके 100,000 तक है, या वो फिर वो रेंज जो है वो 70,000 120,000 तक है। एटलीस्ट ये रेंज आपको जरूर मालूम होनी चाहिए कि आप अंडर पेड ना हो। ठीक है, तो ये जरूर देखें। लेकिन इस चीज़ पे पहली जॉब में आप ये देखें कि अगर आपको वो अकॉर्डिंग टू दी मार्केट में जो सैलरी पैकेजेस चल रहे हैं उसके मुताबिक अगर आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, और कंपनी में आपको अपना वो भी नज़र आ रहा है, पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है, आपको लर्निंग कर्व भी नज़र आ रहा है, तो गो फॉर दैट जॉब। ठीक है, तो बाकी ये कि कैरियर प्रोग्रेशन पे और लर्निंग पे फोकस रखें पहले 2 से 3 साल। तो उसके बाद फिर देखें, जो पहले 2 से 3 साल जो होते हैं ना वो सीखने के लिए होते हैं, उसमें आप ज्यादातर सीख रहे होते हैं। जो 3 से 6 साल या 7 साल का जो पीरियड होता है ना, ये वो पीरियड है जिसके अंदर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप यार सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं,
नंबर 1। और आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं कि आपको कोई असाइनमेंट दी जाए, कोई टास्क दिया जाए, आपको उस पर बहुत ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और बल्कि इनफैक्ट आप जूनियर्स को मेंटोर भी कर रहे होंगे। 6 से 8 ऑनवर्ड, कोई 8, 10, 12 साल आपको एक्सपर्ट के तौर पे देखा जाता है। तो आप ये जहन में रखें कि ज्यादा पैसे जो होते हैं ना, वो जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तब आपकी एक एक वर्थ बनना शुरू होती है, जहाँ पे आपको आप अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी बातें मनवा सकते हैं। आजकल के जो हमारे जो जो नई जनरेशन आ रही है, वो अनफॉर्चुनेटली शॉर्टकट की तलाश में ज्यादा होते हैं। ठीक है, कि वो उनके एम्बिशंस बहुत होते हैं और वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द ज्यादा पैसे भी मिलें। देखें, वो पैसे कमाना हर किसी का हक है, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि नंबर 1 कि आपको ये मालूम हो कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, एंड सेकेंडली फोकस आपका लर्निंग और कैरियर प्रोग्रेशन चाहिए। तो ये बाकी जो मॉनिटरी चीज बेनिफिट्स हैं वो आपको साथ साथ मिलते रहें। और दूसरा फिर ये देखें, जो पहली पहली जॉब के बाद जब दूसरा स्विच करें आप, तो वो बड़ा फोकस किस्म का स्विच होना चाहिए। जो होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्विचेस करना, वो भी अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन रेज करते हैं जब आप फिर 3-4 साल बाद वो करते हैं। शायद एक और चीज़, प्रोफेशनलिज्म पे जो है ना, वो ज़रूर तवज्जो दें। जो आपके कैरियर के पहले 6-7 साल है ना, उस पर आप जज हो रहे हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स की बेस के ऊपर, लेकिन जो उसके बाद का आगे कैरियर होता है ना, वो आप अपने प्रोफेशनलिज्म पे जज हो रहे होते हैं। ठीक है। वो ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि यार टेक्निकली तो बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके एथिक्स ठीक नहीं है। ठीक है। तो ऐसे फिर बंदे को वगैरह इस बार ब्लैक लिस्ट हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट के अंदर सरवाइव करना, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना, रीबिल्ड करना अपनी रेपुटेशन को। लेकिन जो सीनियर लोग होते हैं, अगर उसके का और ये उनके बारे में कहा था कि यार ही इज अ प्रोफेशनली ही इज अ रियल गुड प्रोफेशनल, वहां पे भी टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही होती, एक प्रोफेशनल स्किल्स की बात हो रही होती है। और बाद में फिर ये अज्यूम किया जाता है कि यार अगर वो प्रोफेशनली अच्छा है, इतने साल से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो टेक्निकली और उन चीज़ों के अंदर भी अच्छा होगा। उसके अलावा रोल भी आपका चेंज होता है। आप ज़्यादातर आर्किटेक्चर रोल्स के अंदर आ जाते हैं, लीडरशिप रोल्स के अंदर आ जाते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड पे आ जाते हैं। तो वो जाहिर बात है, फिर आपकी थोड़ी सी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस हिसाब से चेंज हो जाती हैं। ठीक है। Yes, sir. We have one more question. Are there प्लीज। any jobs opening currently at TechRo? Because the students are feeling motivated to go give interview now. जरूर। आप आई विल रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि टेक्रो का जो लिंक्डइन पेज है वो जरूर फॉलो करें। जॉब्स आती रहती हैं और पोजीशंस होती हैं, ज़रूर उनको फॉलो करें। और जो पोजीशन आपको लगे कि रेलिवेंट है, तो उस पर ज़रूर अप्लाई करें। आपके स्किल से और उससे रिलेटेड है, उस पर ज़रूर अप्लाई कीजिए। अ, हम लोग कोई एक एआई का अच्छा एक इंटर्न देख रहे हैं, दैट इज लीडिंग टू जॉब। अगर इफ यू थिंक दैट यू हैव अ गुड एआई स्किल्स, आपकी पाइथन अच्छी है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी अच्छा आइडिया और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप ज़रूर अपना रिज्यूमे जो है वो टेक्रो की careers@techro.com पे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। Yes, sir. Thank you so much. With that, any last questions? Thank you so much, Hamna. Questions, I guess, are very well answered. Thank you so much, Asim Saab. मैं Hola बात कर रही हूँ. We had जी मिस फॉलो। communication earlier. Thank you या so much for giving us such an informative session, and I hope यहाँ पे जितने लोग हैं, including myself, we had a chance to learn a lot from your talk. And definitely, I think जितने आपने pointers दिए थे, they are excellent pointers. I remember when I was starting my career, तो ऐसे कोई mentor आप जैसे मिल जाते, तो things would have been way better, I think. But I think we are lucky at ETL to have you. And again, the whole community is really thankful for your session today.
And Jazakallah. we are looking forward कि इसके बाद भी we would love to have you for any other webinar, any other talk that you would like to give. So thank you from ETL again. Thank you especially from my side. I think we are good to close the session. Hamna and Mutahir, over to you. Yes, ma'am. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Sir Asim. इतने amazing Thank you. session. Thank you Yeah, so you're much for welcome. such empowering insights. Would you like to say something before we leave? मैं बस ये काफी सारी बातें कर ली। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि फोकस वट एवर यू आर डूइंग, डू इट विद कमिटमेंट, विद ऑनेस्टी एंड विद एथिक्स। तो जो हम पाकिस्तान के अंदर जो हम चीज़ें लैक करते हैं वो ना प्रोफेशनल एथिक्स है। और इस चीज़ का आइडिया आपको प्रोफेशनल लाइफ में आके पता चलता है। तो अपने एथिक्स अच्छे रखें। एथिक्स के अंदर भी देखें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मून लाइटिंग ना करें। अगर आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो मल्टीपल जॉब्स की तरफ ना देखें। कोई हॉबी प्रोजेक्ट सारा जरूर करें, लेकिन फोकस ऑन द बिकॉज अगर मून लाइटिंग करते हैं तो उसका उसका इम्पैक्ट ये होता है। मून लाइटिंग बाय द वे समझते हैं, मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम, दैट्स कॉल्ड मून लाइटिंग। तो अभी पिछले दिनों टेक क्रंच के ऊपर मैं लिंक शेयर करूंगा। एक इंडियन इंजीनियर था हु इज एक्सीलेंट, लेकिन ही वाज डूइंग 51 jobs at a time and he was working 190 hours, but now he has been blacklisted with all his skills and everything। अब उसको कोई रखना नहीं चाहता सिलिकॉन वैली के अंदर। तो कई दफा होता है कि आप स्किल्ड होते हैं लेकिन आपके सिर्फ एथिक्स की वजह से आप अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। तो मेरी यही सबको एडवाइस होगी कि प्रोफेशनल एथिक्स का जरूर ख्याल करें। और बाकी एक मैं कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन के कुछ क्वेश्चंस की एक वेबसाइट थी जो कि आज की टॉक बनाते हुए मुझे एक गो थ्रू की मैंने, वह मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा इन द चैट। ये आई बिलीव के सबको जी सर, thank you so much for जी this. जी सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जी अवैध। अगर ETL पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाए मॉक इंटरव्यूज का, उससे ये होगा कि जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं वो ट्रेन हो जाएंगे आने वाले इंटरव्यूज के लिए। वो कोई मसला नहीं पेश होगा। जी जी, हमने किया था ये, मुझे याद पड़ रहा है कि मैं भी आई वाज पार्ट ऑफ दैट इवेंट जिसके अंदर हमने कुछ लोगों से उनके सीवीज पहले मंगवाए थे। सीवीज शॉर्टलिस्ट हुए थे और बाद में फिर हमने फाइनल कॉन्टेस्टेंट थे। एम आई राइट हमना एंड मुताहिर? एक इवेंट हुआ था आई थिंक समवेयर इन दिसंबर। बिल्कुल सर, एंड बिल्कुल। उस We had that ठीक है, tech resume competition या where Sir Asim actually judged the tech resumes और वहाँ पे interviews भी होते। अबैद, इंटरव्यूज भी wonderful हुए थे। suggestion. I would ask कि आप feedback form पे भी ये suggestion put करें। And everyone, thank you so much for your questions. Feedback form का link I have shared as well. I would request Sir Asim to share the slides as well with us और हम उसको विल डू portal दैट, पे upload करेंगे। जरूर। Chalo, with that being said, we'll conclude the session tonight. Thank you so much, everyone, for joining, and I hope you ace your next interview. Allah Hafiz, everyone.